I hope recording has started. Let's clear this out. See, last lecture we discussed about RMS velocity, and then we just briefly discussed about vectors for this concept. If you have your velocity is three-dimensional, okay. If a particle is moving in any random direction, then we say that let's say there is one particle m1, okay, which is moving in some direction, some random direction with velocity v1. So to ease calculation, what I'll do is I'll assume that this vector v1 has three components: x component, y component, z component. Okay, and and hence we can write like this: v1 vector is equal to v1 x I cap, okay, v1 y j cap, and v1 z k cap, and hence you can write the magnitude like this. करेक्ट ना? समझ रहा है ना ये सब? ठीक है, अब देखो डेरिवेशन चालू करेंगे. So this derivation is part of your HSC also, इसलिए I'll think थोड़ा in detail. Okay, so it's the pressure derivation. And you must remember, we discussed about this macro micro properties. So we'll get in micro properties. Micro में आंसर आएगा. देखो कैसे आएगा. You'll understand. So the goal is to find pressure. The way we'll find is try to find the force acting. We'll divide force by area, तो pressure मिल जाएगा अपने को, right? Force निकालने के लिए what is the method? We'll try to find change in momentum, okay, upon we'll divide it by time taken. तो ये निकालेंगे. पहला step will be to find change in momentum. Then I'll divide by time to get force. Okay, once I get force, I'll divide by area to get my pressure. This is the derivation of flow that you should know. समझ में आएगा? पहले change in momentum निकालेंगे. चलो small p लिख देते हैं इसको. चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, ओके, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स मिलेगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मिलेगा. ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहेगा. तो दिमाग में रखो इसको. अभी क्या क्या एजम्पशन लेंगे देखो. पहले तो वील से अज्यूम दैट जैसे कंटेनर, एक कंटेनर ले लेंगे, क्यूबिक कंटेनर लिया है अपन ने, ठीक है. तो दिस इज लेट्स से सम ए, और यू कैन से टेक इसको लेट्स से सम एल, ओके, एल साइड का क्यूबिक कंटेनर, एंड वी अज्यूम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर, ठीक है. वी हैव एन मॉलिक्यूल्स इनसाइड, okay, n molecules, and each of mass small n, each of mass small n. We remember KTG का सब assumptions लिया था हमने, all molecules are identical and things like that, okay. So that assumption I am taking. So I can say that if there are n molecules each of mass m, what will be the total mass of gas? Will be capital M, which will be simply n into small m, okay. And you remember this is my relation number 1, okay. Also, what is the total volume available for motion? Remember we assume that कि गैस का molecules है very less as compared to volume of container, so we'll assume that कि जो volume है वो क्या होगा, volume of container होगा, right? So यहाँ पे volume of container क्या होगा, V is equal to simply LQ. This is relation number 2, है ना? And if you remember our RMS velocity definition, so by definition of RMS, VRMS, what is VRMS? Root means square velocity ना, ठीक है. तो उसको ऐसे लिखा था, देखो तुमको याद है तो, इट वाज रूट ऑफ समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन. स्क्वायर किया, वी स्क्वायर एवरी टर्म, ठीक है. देन वी टुक द मीन बाय डिवाइडिंग इट, ऐड करके वी डिवाइड बाय एन, एंड देन वी टुक द रूट. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो इससे वी हैड गॉट कि समेशन वी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एन वी आरएमएस स्क्वायर. दिस इज माय रिलेशन नंबर 3, ठीक है. These are some assumptions before we start the derivation. Also, I'm going to assume that let's say there are n molecules. So if I pick any one molecule, एक molecule कैसे पकड़ लिया मैंने. Let's say this is molecule number 1 whose velocity is v1 like this. This is molecule mass m1. m1 only means कि I'm talking about particle 1. Mass is not different. m1, m2 if I write, इसका तो ये नहीं कि इसका mass m1 है, उसका mass अलग है. यहाँ पे सिर्फ particle को number देने के लिए ऐसा रखा है. I know that कि each molecule is of same mass m. तो मास उनका सबका सेम, ये सिर्फ खाली एक नंबरिंग जैसे कि मैंने m1 m2 लिखा हुआ है, ठीक है. तो m1 मतलब पार्टिकल 1 की बात चल रही है. अगले पॉइंट, ओके. सो हियर व्हाट कैन वी से, हियर यू कैन से दैट कि अगेन द सेम अजम्पशन कि इफ यू हैव एनी वेलोसिटी तो उसको हम लोग कंपोनेंट दे सकते हैं. तो लेट्स से दिस इज v1 वेलोसिटी, तो हेयर इज वन x कंपोनेंट, हेयर इज वन y कंपोनेंट एंड वन z कंपोनेंट, ओके. देयरफॉर आई कैन राइट फॉर एनी मास m1, okay, velocity is v1 vector, and that v1 vector is given by v1 x I cap
प्लस v1 y j कैप प्लस v1 z k कैप, है ना? एंड हेंस आई कैन ऑल्सो राइट व्हाट, I can write v1 square is equal to v1 x square plus v1 y square plus v1 z square. Are you getting the point? Okay, so v1 square will be written as v1 x square plus v1 y square plus v1 z square, and similarly we can say m2 mass के पास velocity will be v2 and that will be v2 x I cap plus v2 y j cap, है ना? सब नंबर चेंज करना है, बाकी तो सेम ही है. ओके, दैट विल बी v2 square is equal to v2x square plus v2y square plus v2z square and so on, है ना? So on we can write for any nth particle. So mn particle will have velocity vn vector, that would be vnx plus vny j cap plus vnz k cap, and this implies vn square should be equal to what? हाँ, so vn square will be written as vn x square plus vn y square plus vn z. The reason I am doing this exercise is you understand कि if I add everything, ये पूरे terms को add करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, if I add left hand side, you add v1 square plus v2 square plus v3 square plus v4 up to vn square. So this sum of all velocity are square. So इसको we can write as summation of v square. Do we agree? ये क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी का सम तो है, स्क्वायर करके किया है. तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, द सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, इजंट इट? ठीक है, उसको वी कैन राइट एज व्हाट? इसको समझ में आ रहा है क्या? पहुंचा जा रहा है क्या? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ v स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? इफ आई ऐड ऑल द x टर्म्स, व्हाट डू आई गेट? हाँ, see it is v1 x square, v2 x square, vn x square, right? ठीक है, this is sum of velocity only, but we are adding only the x component. समझ में आया क्या? तो I'll write यहाँ पे summation of vx square, है ना? I get the point. वो term वो मैंने numbering निकाल दिया यहाँ पे. I hope you understand. Okay, because general we are adding plus यहाँ पे क्या है? Summation v square plus summation z square. Okay, now you should understand, ठीक है, what is happening यहाँ पे. कि इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ना कि गैस का जो मोशन है रैंडम होता है. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू गो स्पेसिफिकली इन वन डायरेक्शन. वी कैन नॉट से दैट कि 1000 मॉलिक्यूल्स आर गोइंग हियर ओनली इन द एक्स डायरेक्शन. अगर 1000 एक्स में जा रहा है तो 1000 वाई में भी जाना चाहिए, 1000 जेड में जाना चाहिए. ठीक है, मोशन इज रैंडमाइज. रैंडमाइज का मतलब क्या है? कि देयर इज नो नेट डायरेक्शन एनीवेयर, इट इज मूविंग एवरीवेयर इक्वली, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? तो वो assumption से व्हाट आई कैन से कि लुक एट दिस v समेशन vx स्क्वायर समेशन vy स्क्वायर समेशन vz स्क्वायर, ऑन एवरेज ये तीनों समेशन का वैल्यू सेम ही रहेगा. ऐसा अज्यूम करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ऑन एवरेज ये जितना वेलोसिटी इस तरफ है उतना ही उधर, उतना ही उधर. तो ऑन एवरेज आई कैन से दैट कि दीस थ्री वैल्यूज आर इक्वल एंड हेंस आई कैन राइट लाइक दिस. सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट यहाँ पे, समेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन ऑफ vx स्क्वायर. ऐसा लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आई गेट द पॉइंट? बिकॉज ये तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है ऐसा मान लेते हैं आप. ठीक है, ओके, तो इक्वल है तो जस्ट वी कैन जस्ट ऐड की दिस 3 टाइम्स vx स्क्वायर. मैं 3 टाइम्स vy भी लिख सकता था, 3 टाइम्स vz भी लिख सकता था. आई एम राइटिंग vx बिकॉज़ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम x एक्सिस. समझ में आया क्या इतना? एनी क्वेश्चंस हियर? देखिए, देयर आर 4 पॉइंट्स बिफोर आई स्टार्ट द डेरिवेशन. आई रिटन 4 पॉइंट्स. पहला, टोटल मास इज nm. सेकंड, वॉल्यूम इज l क्यूब. ठीक है. थर्ड, vrms का फार्मूला के वजह से वहां समेशन v स्क्वायर मिला है. फोर्थ, मैंने बोला वेलोसिटीज को इफ यू लुक एट केयरफुली यू विल गेट की समेशन v स्क्वायर इज 3 टाइम्स समेशन ऑफ vx स्क्वायर. व्हाट इज vx यहाँ पे? इट इज x कंपोनेंट का वेलोसिटी. समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है? समझ में? बेसिक मैथ ही है, कुछ खास नहीं किया है मैंने. एनी डाउट्स प्लीज आस्क. गेट दिस? ठीक है, नाउ आई कैन स्टार्ट द डेरिवेशन. नाउ यू शुड नो दैट डेरिवेशन ऑफ फ्लो कैसे रहने वाला है. फ्लो ऐसा रहने वाला है. आई विल गेट द चेंज इन मोमेंटम एंड देन टाइम से करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. चलो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, what I'll do is I'll say कि imagine a wall which is kept here. Left एक wall ले लिया हमने. तो if you go back to your definition of pressure of gas, I told you that molecules are randomly moving anywhere. In that motion, they collide with each other, and they also collide with the walls of the container. When they collide the walls of the container, they exert force, and that force upon area will be called as pressure. तो प्रेशर ऑफ द गैस इज व्हाट? कि कितना कोलिजन्स कर रहा है, उसको से कितना फोर्स मिल रहा है, उसको एरिया से डिवाइड कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, एक केस ले लिया जहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो लेफ्ट एंड में था, यहाँ पे लेफ्ट वॉल के पास था.
एंड यहाँ से शुरू किया उसने, आई एम जस्ट लुकिंग एट एक्स एक्सिस राइट नाउ, तो इट स्टार्टेड विथ v1x वेलोसिटी, ठीक है, ये मास m1 है अपना, ठीक है, गया वॉल को हिट किया, अब हिट करने के बाद व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक विद द सेम वेलोसिटी, isn't it? Because क्या बोलते हैं, there is no energy loss, it is elastic collision, ठीक है, तो अगर m1 mass is going with v1x, वापस कैसे आएगा, सेम वेलोसिटी से आने वाला है, तो v1x से वापस आएगा ये, समझा ना? बट इन दैट प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर पार्टिकल 1 along x direction is what, it will be the, it will be final momentum minus initial momentum, okay, final momentum, this is the final one, right, ऐसे वापस आ रहा है, तो पॉजिटिव, राइट, इसको m1 v1x माइनस, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ m1 v1x, आई गेट व्हाट, आई गेट 2 m1 v1x, आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब टाइम टेकन टू डू दिस, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, ऐसे चलते रहता है, मतलब, ठीक है, एक साइकिल का तो टाइम होगा, दैट विल बी कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ, दैट इज 2l अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, सो v1x, ये दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, मतलब दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके, तो ये टाइम ले लिया आपने 2l अपॉन v1x, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज टाइम टेकन, ठीक है, ओके, टाइम टेकन तो टेकन लिख दीजिए, ओके, एंड देन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम, व्हाट डू यू गेट, व्हाट डू यू गेट, चेंज में बड़ा टाइम क्या होता है, इट इज फोर्स एक्सर्टेड by particle 1 on the x-axis, it will be simply change in momentum upon time, यही तो पढ़ा था अपने, है ना, समझ रहा है क्या, ठीक है, तो क्या मिलेगा देख, 2m1 v1x upon 2l divided by v1x, this will go up, you will get 2 to cancel, m1 v1x square upon l, any questions, ठीक है, now this is force exerted by first particle, what is the net force then, net force will be f1x plus f2x and so on, fnx, now you tell me what do you get, see you must realize, मैंने पहले ही बोला था कि ये m1 मैंने सिर्फ शो ऑफ के लिए लिखा है, बिकॉज आई वांट इट फॉर पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 का मास भी m2 लिख सकते हैं, बट वो है तो m ही, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, m1 m2 ओनली मींस नॉट आफ्टर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, ठीक है, तो हियर व्हाट आई गेट m1 v1x स्क्वायर अपॉन l, m2 v2x स्क्वायर अपॉन l एंड सो ऑन, राइट, ठीक है, तो इफ आई राइट आई कैन टेक m कॉमन क्या, और l भी कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है, ले लेते हैं, चलो, ठीक है, m2 v2x square upon l and so on, ठीक है, तो what do I get is m common, l common, I have v1x square, yes, v2x square and so on, vnx square मिलेगा, right, है ना, ठीक है, what is this, summation of the x components, right, I'll say net force will be, ठीक है, m by l summation vx square, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, is it making sense to you guys, if you want प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर विल बी नेट फोर्स अपॉन एरिया, है ना, एरिया ऑफ द वॉल इज हाउ मच, टेल मी, एल स्क्वायर, राइट, ठीक है, एंड जस्ट डिवाइड दिस टू m अपॉन l समेशन vx स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर विल गिव मी m अपॉन l क्यूब समेशन vx स्क्वायर, एनी क्वेश्चंस एनीवन, यहाँ समझ में आया क्या, अभी हो गया, अभी खत्म है, ठीक है, देखो व्हाट इज l क्यूब, वॉल्यूम, ठीक है, तो कैपिटल V लिख सकते हैं, हमने पहले अज्यूम कर लिया था, कैन आई राइट दिस एज, दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन vx स्क्वायर, इफ यू गो टू फोर्थ अजम्पशन इट वाज this summation v square was 3 times summation vx square, so this will be summation v square upon 3, are you getting the point, ठीक है, and इसको भी we can substitute as what, इसको क्या कहते हैं, n vrms square, if you go back you understand, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, देखो, so I am going to keep everything else ऐसे ही, इसको क्या लिखा है, n vrms square, ठीक है, what is m into n, टोटल मास, ठीक है, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, 1/3, ठीक है, रो, बिकॉज m अपॉन v, समझ रहा है क्या, चलो एक स्टेप लिख देते, छोड़ो, m अपॉन v vrms स्क्वायर एंड देन व्हाट वी गेट, p इज इक्वल टू 1/3 रो vrms स्क्वायर, नाउ सी यू अंडरस्टैंड, वी हैव लर्नड अबाउट pv इक्वल टू nrt, है ना, pv इक्वल टू nrt में p
वॉल्यूम वॉज मैक्रो प्रॉपर्टी, प्रेशर मैक्रो प्रॉपर्टी, टेम्परेचर मैक्रो प्रॉपर्टी, राइट. ये भी फॉर्मूला प्रेशर का ही है, बट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रॉपर्टी. यू शुड अंडरस्टैंड कि डेंसिटी के अंदर कहीं ना कहीं वॉल्यूम छुपा हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? वॉल्यूम एंड डेंसिटी समझा कहीं ना कहीं रिलेटेड है. तो मैक्रो, ये माइक्रो प्रॉपर्टी. डेंसिटी, कैन यू मेजर डेंसिटी ऑफ गैस? नहीं ना, लैब में है क्या इंस्ट्रूमेंट डेंसिटी मेजर करने के लिए? नहीं है, ठीक है. कैन यू मेजर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस? नो, वी कांट. समझ में आ रहा है क्या? बट इट इज, बट यू शुड नो दैट कि आरएमएस विल रिलेट टू टेम्परेचर, ठीक है. तो ऐसा है, मतलब दिस इज माइक्रो फॉर्म ऑफ द प्रेशर, ठीक है. मैक्रो फॉर्म कर सकते हैं कन्वर्ट, और विल डू इट आल्सो. दिस इज पीवी इक्वल टू एनआरटी इन अनदर फॉर्म. या वी कैन से दैट कि वी कैन डिराइव पीवी इक्वल टू एनआरटी फ्रॉम हियर. आई गेट द पॉइंट, ठीक है. तो विल डू दैट. ये लिख लो अभी, फिर आगे बढ़ते हैं. आई पॉज द वीडियो. Let's go ahead. From this formula we can get KE का formula, kinetic energy of gas. Now what is kinetic energy of gas? If I have to write it, I'll say it is kinetic energy of the first particle plus kinetic energy of the second particle. I'll add kinetic energy of each particle, isn't it? Nth particle. So that can be written as like this: half m1 v1 square plus half m2 v2 square and so on, half mn vn square. Do you agree with this formula? Every particle kinetic energy of adding. समझ रहा है क्या? ओके, अब देखो, यू नो दैट कि मास तो सेम है सबका, ठीक है, isn't it? I can take half common and m common. What will I get in the इसके अंदर ब्रैकेट में? v1 square plus v2 square and so on, isn't it? Which is summation of v square, isn't it? Summation of v square, correct? And this is actually what? This is actually, if you go to RMS, this is N V RMS square. And what is this? N into M. Total mass. Total mass. Okay. So what I understand from this formula, कि kinetic energy of gas is equal to half mv square only. But what is this? What is the V? It is not V average. It is not V mean square. ठीक है. V mean भी नहीं है इधर पे. V mean square भी नहीं है इधर पे. कौन सा है? रूट मीन स्क्वायर है. समझा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. गैस का एनर्जी के बारे में बात करना है तो किसके बारे में बात करेंगे? वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? एंड दिस वेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दो इसके ऊपर. यू अंडरस्टैंड कि एनर्जी, गैस हैज ओनली वन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज़ देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट? है ना? तो ओनली एनर्जी गैस हैज इज काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच वेलोसिटी? आरएमएस वेलोसिटी. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके, थोड़ा और इसमें टाइम पास कर सकते हैं. देखो, ठीक है. आई कैन मेक अ फॉर्मूला लाइक दिस. आई नो दैट, लेट्स गो नेक्स्ट पेज. आई नो दैट कि P is equal to 1/3 rho V RMS square. We got this formula just now, isn't it? So what I can do is, I just convert इसको. Density is mass upon volume, correct? So we can get mv RMS square as 3P. And what is kinetic energy of gas? Half mv RMS square. Put the value, what do you get? 3/2 PV. Or we can write इसको 3/2 nRT. तो ये फॉर्मूला तुम्हारा मिल गया तुमको के का. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. एनी क्वेश्चंस? ओके, लुक एट दिस नाउ. इफ आई वांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, व्हाट शुड आई डू? Just divide Ke of gas by number of moles, isn't it? What do I get? I get 3/2. N will go off, है ना? So 3/2 RT. This is the formula for kinetic energy of gas per mole. Okay. If I want kinetic energy of gas per molecule, मतलब एक molecule का energy चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे? एक मोल का energy I have. This is 1 mole का energy, right? If I want 1 molecule, what do I do? एक मोल में कितना होता है? Avogadro number. So just divide by Avogadro. I get the point. So divide by Na कर दो. And you should know that what is R upon Na called? It's a special constant called as Boltzmann constant. ठीक है. Okay, 3/2 kBT. That is Boltzmann constant. This is the formula for kinetic energy of 1 mole. This is 1 mole. This is 1 molecule. एक molecule का energy पूछा तो this is the formula you put. Okay. So sometimes तो this is the formula you should know. एक molecule तक का जाना था. एक और कभी-कभी क्या करते हैं ना, वो लोग they'll ask you these kind of questions are common. Okay, they can ask you kinetic energy of gas per mass.
मतलब पर केजी पर ग्राम ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट यू डू, यू जस्ट डिवाइड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ मास, m से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो व्हाट डू यू गेट 3/2 nRT divided by m, the correct, that is 3/2. what is n का वैल्यू, is given mass upon molar mass, right, है ना। RT upon this m is already there, cancel this, what do I get, I get 3/2 RT by m naught, है ना। I hope you are getting this, RT by m naught. These are the formulas that we should know for kinetic energy of gas. Any questions? Okay, we got kinetic energy of the gas is 3/2 PV or 3/2 nRT. Then we got kinetic energy per mole 3/2 RT per molecule, मतलब one molecule 3/2 kT. Okay, K is Boltzmann constant. Also we got kinetic energy per mass if they ask you per kg, per gram, things like that. Per kg कर सकते हैं, अगर पर ग्राम को conversion करना पड़ेगा. This is making sense. ठीक है. This kind of question they can ask you. They can give you the data. They can give you R, M naught, and all those things. R is what? 3.14. 8.74, ठीक है। आई गेट द पॉइंट। ये आगे वाले तो फिजिक्स में कांस्टेंट ही है बस, ठीक है, क्योंकि हम लोग एसआई में ही काम करते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, दिस फॉर्मूला थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है, ओके, बिकॉज मोस्टली दे विल आस्क यू क्या बोलते हैं, हाँ, तो यूज डेटा दे विल गिव इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आर, एपी एंड दोस थिंग्स। तो ये वाला फॉर्मूला कम होता है। ये वाला फॉर्मूला इसलिए बनाया तुम्हारे लिए बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि kinetic energy depends on what quantity, which velocity, because we are going to learn three velocities, mean velocity, mean square and RMS. So what is the significance of RMS? ठीक है, RMS क्यों पढ़ाया है तुमको, ये बताने के लिए कि बॉस वो इसलिए पढ़ाया बिकॉज वो डिसाइड करता है kinetic energy क्या होगा, बाकी वेलोसिटीज इस पिक्चर में नहीं आई है, समझ में आया? तो whenever you have to talk about energy of gas, ठीक है, you should always think in terms of RMS velocity, क्या हो रहा है। Are you getting the point? ठीक है, अच्छा थोड़ा और करते हैं, ठीक है, थोड़ा we'll discuss about RMS velocity also. Let's discuss about that. So we know that P is equal to again same thing 1/3 rho V RMS square, correct? Okay, so we can say V RMS is basically root 3P upon rho, है ना। I'm just taking 3 यहाँ पे and P नीचे and then taking the root, correct? Okay, now if I tell you this, if I tell you कि let's say if I give you a question like this कि if pressure is made 4 times, ठीक है, then what will happen to VRMS? So what will be the answer? Will it get doubled? VRMS will become twice of VRMS, which was earlier. Huh? Yes or no? Yeah, that is what you have to remember. ठीक है, ये if I change pressure, will density remain constant? It will change. It will change. यही तो पढ़ा था आपने यार, when we started our chapter, we talked about कि how pressure changes the density. So you must understand कि when pressure is changed, density will also change. Okay, so just pressure का information they give me, that is not enough. They have to tell me कि pressure change करने के बाद density कितना change हुआ है, समझा क्या? समझा? तो या उल्टा, if they give me about density, I cannot judge कि what is going to happen to VRMS. They should tell me कि how much pressure is also changing. So you should know that this note is very important. What is note? कि pressure or density info alone is not enough, है ना? Alone is not enough for VRMS. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों करना पड़ेगा, बट एक और वी कैन जस्ट कन्वर्ट दिस फॉर्मूला टू अ बेटर फॉर्मूला जहाँ से ये सब इश्यूज नहीं आएंगे, ओके। और अगेन से ये फॉर्मूला यहाँ पे ले लो, VRMS इज इक्वल टू रूट 3P, रो को राइट M अपॉन V, है ना, एंड वी नो दैट कि PV is nRT upon M and the same thing. What is N? N is given mass upon molar mass, ठीक है, cancel this out, you get VRMS का beautiful formula and this is actually more useful, okay, 3RT by M naught. यहाँ पे if you tell me कि temperature 4 times हो रहा है, so what is happening to VRMS? I can say it is twice, समझा? बिकॉज अंडरस्टैंड कि R तो ऐसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, और m नॉट इज मोलर मास, वो भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, दैट कैन बी डन। इनफैक्ट दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस आल्सो, कि दे कैन आस्क यू एग्जांपल, दे कैन आस्क यू कि भाई बताओ कि व्हाट इज द आरएमएस वेलोसिटी इन ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। तो यू शुड बी एबल टू गिव मी दैट आंसर इजीली बिकॉज यू नो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, R पता है, टेंपरेचर दे दिया, आंसर आ गया, ठीक है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो कि कहीं कंपेयर
VRMS, ठीक है, in let's say oxygen with helium, ओके, यू विल बी एबल टू डू इट. मोलर मास अलग अलग है, अभी सेम टेम्परेचर बोला है तो सेम टेम्परेचर कंपेयर कर सकते हो. ओनली मोलर मास विल चेंज, दे गिव यू टू डिफरेंट टेम्परेचर, देन आल्सो यू कैन कंपेयर. अनदर पॉइंट, ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. समझ में आया इतना? ठीक है, पक्का. पॉज कर दो. आ जाओ. See, we discussed ना कि this formula 1/3 rho VRMS square is actually equivalent to PV equal to nRT. So let's try to understand how. Okay. First, see if I can prove those three laws. What was the first law? Boyle's law, Charles law, है ना? What is Boyle's law? Temperature constant. Boyle's law था. Pressure is reversible. Volume. हाँ, ठीक है. तो if T is constant, P is inverse volume, right? That is what you are saying, right? है ना? See, we can prove that. If T is constant, can I say that कि VRMS is constant? है ना? VRMS is constant. We can say that, right? Which means now what is this density? Mass upon volume. VRMS square. ठीक है. तो if T is constant, then this value is constant, which means what? Because mass is not going to change, isn't it? Hence proved by Boyle's law. ठीक है. तो if you can prove Boyle's law, मतलब PV वाला फॉर्मूला हो गया. PV equal to constant is proved. Okay. Next is what? Charles law. What is Charles law? If V is constant, ये है ना? नहीं, T constant था ना? वॉल्यूम constant ही था क्या? चलो ठीक है. If V is constant, ठीक है, P is proportional to T, right? है ना? So we can say that actually easily because P is 1/3 m by V RMS square, correct? So V constant means P is proportional to V RMS square, which is proportional to actually T, because V RMS is root T, okay, proportional to root T, है ना? So V RMS square will be proportional to T. Hence proved. है ना? ठीक है. What is the third one? K do X. थर्ड वन, हाँ, गेलूस एक्स क्या है वो? If P is constant, then V is proportional to T. So that is so simple now. P is equal to 1/3 m by V RMS square, right? So if V is constant, sorry, if P is constant, we can say that V is proportional to V RMS square, which is proportional to T, hence V is proportional to T. And if you remember, we could combine these three results. And we could say कि क्या हो रहा है? PV upon T is constant, right? है ना? And we found out that this constant is actually equal to NR, and hence we can say PV equal to NRT. तो यही है मतलब, है ना? तो these two are actually equivalent form. We can prove PV equal to NRT with P is equal to 1/3 VRMS. The thing is कि यहाँ पे we have those terms which is not usually measured in labs. Okay, and यहाँ पे we have those terms which can be measured. Okay, and that is why this law can be proved using practical purposes. है ना? तो practically बॉयल ने प्रूव किया कि ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा. प्रैक्टिकली गेल-लुसाक्स ने प्रूव कर लिया because लैब में मेजर कर पाए थे. Those are macro properties which can be measured in lab, hence it could be proved. Okay, this can be proved indirectly. समझ में आ रहेगा? This can be proved actually when you proved this, you actually proved this, or vice versa we can say. Is making sense? ठीक है. तो both are equivalent in this context. So I just write ideal gas equation. Pause this and quickly write, then we'll go to next topic, degree of freedom. Okay, look at this. See, Maxwellian distribution curve
So this is not the only distribution curve which is available. There is something called as Euler's distribution curve. There are so many curves which can represent general motion of molecules. जैसे तुमने कभी देखा है क्या, रील्स पे आया होगा कभी तो, कि इसे रैंडमली बॉल्स को ऊपर से छोड़ रहे हैं और दे फॉर्म ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. हैव यू सीन दैट रील? नहीं देखा तो आई विल शो यू लेटर. ओके, इट्स अ नाइस वीडियो. गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, कि रैंडमली आपको ऊपर से पार्टिकल छोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में. तो आई शो दैट एट द एंड, मुझे याद दिलाना, एंड लेक्चर के एंड में दिखाता हूं मैं. बट ये दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज दिस इज dn by dv. ओके, dn by dv मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो एक पर्टिकुलर रेंज के जो वेलोसिटीज है वो यहाँ पे वाई एक्सिस में, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है. ओके, तो व्हाट वी हैव फाउंड कि व्हेन यू लुक एट अ गैस, एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रखा है तुमने, ठीक है, तो वो कंटेनर में हर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होता है. ऐसा नहीं ये 20 से ज्यादा, यही 20 से जा रहा है, ठीक है. एवरी मॉलिक्यूल इज हैविंग सम डिफरेंट velocity. Okay, and if I plot those velocities something like this I get, ऐसा कुछ curve मिल जाता है मुझे. Okay, and what I realize, look at the curve का nature. Okay, ये जो कर्व ऐसे पीक करके फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है देख, कि ये VMP मैंने क्यों लिखा है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. मतलब अगर मैं, तो ये व्हाट दिस y axis, so you can assume it's a number of molecules, ऐसा assume कर लो कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसा है, ठीक है. तो मतलब अगर मैं ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसका नंबर सबसे हाईएस्ट है, देखो, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इफ आई रैंडमली पुट माय हैंड इन द कंटेनर एंड पिक अ मॉलिक्यूल, ओके, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसकी वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी होगी. समझा? बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वेलोसिटी इज वेरी हाई, ठीक है. तो जैसा इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, चांसेस ज्यादा है कि ये वाली वेलोसिटी का मॉलिक्यूल तुमको मिलेगा. समझ में आ रहा है? व्हाट इज VMP एंड हाउ डू आई फाइंड दैट VMP? सी, actually a curve ka there is an equation also. Look at this equation. It's a very weird looking equation, but there is an equation like this. Okay, and there is a reason why this term is there and all those things. So if you go in advance, और एडवांस पढ़ना है या थोड़ा ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, ये टर्म्स को भी एक्सप्लेन करते हैं. तो उसके लिए भी आई कैन गिव यू रेफरेंसेस, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अपने को वी नीड टू नो द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है. ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नंबर 1 कि दिस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कर्व समझ लो ऐसा दिख रहा है, ओके, और ये वेलोसिटी ऐसी है, ओके, और उस कर्व का इक्वेशन ऐसा है. अगर मुझे चाहिए कि VMP की वैल्यू क्या है, तो हाउ डू आई फाइंड दिस VMP? आई विल से दैट टू फाइंड VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अब मुझे निकालना है अगर, तो यू कैन इजीली डिराइव इट. यू कैन जस्ट से दैट कि स्लोप ऑफ द कर्व इज 0 एट दिस पॉइंट, है कि नहीं? यहाँ पे स्लोप तो 0 है ना, ठीक है. तो इफ यू जस्ट स्लोप इक्वल टू 0 कंडीशन डाल दो, मतलब क्या करना है, डेरिवेट करना है तुमको. सिंपली ये फंक्शन को डेरिवेट कर दो, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. दिख रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतना कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ओके, बिकॉज डिफरेंशिएशन में यू डू दिस काइंड ऑफ फंक्शन, e raised to x और मल्टी u into v रूल ही है, कोई बड़ा नहीं है. करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? रिमेंबर द वैल्यूज, डू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ 3 वेलोसिटीज, VMP, V average and V RMS. V RMS is √3 RT by m naught. V average is 8 by pi RT by m naught, and VMP is 2 RT by m naught. So what if I solve this, I should get this value. इसको स्लोप इसको डेरिवेट करो, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, तो V का जो वैल्यू निकल के आने वाला है वो ये आएगा, 2 RT by m naught आने वाला है. समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ ये तो हो गया प्रोबेबल वेलोसिटी, तो स्लोप 0 से मिल जाएगा. ओके, हाउ अबाउट इफ आई वांट एवरेज वेलोसिटी, हाउ डू आई गेट इट? एवरेज और मीन वेलोसिटी, हाउ टू गेट द एवरेज वेलोसिटी यूजिंग दिस इक्वेशन? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, एवरेज है ऐसे, आई हैव टू टेक एन एग्जांपल. लेट्स से इफ आई गिव एग्जांपल लाइक दिस, कि 2 सब्जेक्ट्स में यू गेट 50 मार्क्स, 3 सब्जेक्ट में you got 70 marks, 4 subjects में you got let's say 40 marks. If I ask what is the average score, how do you get it? You say 2 into 50 plus 3 into 70 plus 4 into 40, right? Upon put on 2 plus 3 plus 4. ऐसे ही करोगे एवरेज, यही तरीका है ना एवरेज निकालने का, ठीक है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है. हम लोग क्या करते हैं कि V एवरेज अगर निकालना है तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आई लाइक इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ n into dv, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, इनटू उस सब्जेक्ट के मार्क्स, कैसे ही, ठीक है, वैसा कुछ. समझा क्या? अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn. सॉरी, ये आना चाहिए
दिस शुड बी v into dn अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn, दैट इज द एवरेज। समझ में आएगा? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी है, 20 मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी है, 30 मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी है, ठीक है? तो वही है, 10 मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी है। ऐसे ऐसे टर्म्स को वी आर एडिंग, आई होप यू आर गेटिंग दिस। इट्स लाइक दिस इज dn, this is v, so dn into v, dn into v, dn into v, I am adding them, so adding मतलब integration, if you remember। समझ में आ रहा है क्या? इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है, राइट? कंटिन्यूअसली ऐड करना तो व्हाट आई डू इंटीग्रेशन, राइट? समेशन का रिप्लेसमेंट है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? समेशन क्या करता है? डिस्क्रीटली ऐड करता है, ठीक है? इंटीग्रेशन कंटिन्यूअसली ऐड करता है। समझ में आया क्या? इफ आई ऐड दिस टर्म बार बार, तो आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ dn into v, समझा? अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से इंटीग्रेशन ऑफ dn is making sense, ठीक है? If you solve that, you should get this value 8 by pi RT by part। समझ में आएगा? ऐसे ही if I want RMS velocity, how do I get it? रूट मीन स्क्वायर कैसे करेंगे? Mathematically I'm just showing you, because the reason I'm showing you this is because something like this we'll do for डीके लॉ। जब मॉडर्न फेस करेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ करेंगे, वहां पे डिराइव करना पड़ता है, वहां पे भी डू हाफ लाइफ और मीन लाइफ करते, तो वहां पे ये काम आता है फंडा। तो यहाँ पे वी RMS निकालना है अगर, तो आई यूज द सेम फॉर्मूला। RMS मतलब क्या है? स्क्वायर करके मीन निकालना है एंड देन रूट करना है। तो व्हाट आई डू दिस, आई से स्क्वायर द वेलोसिटी, ठीक है, एंड देन ऐड करके तुम मीन निकाल लो, दिस इज द मीन, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ dn, राइट? स्क्वायर करके ऐड करके फिर मीन निकाला है। नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी को ऐड करके मीन निकाला था, यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करके मीन निकाला है। स्क्वायर इट, ओके, गेट द मीन and then what do you do? Root it, that's it. If you solve, you should land up to this value. समझ में आ रहा है क्या? Now if you arrange these velocities, which is the highest, which is the lowest? EMP सबसे कम कौन सा है? करो ना यार, ये 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 by pi है। 8 by pi क्या होता है? 2 से ज्यादा या 2 से कम? हाँ, 2 से ज्यादा कि 2 से कम? 8 by 3 ना? 8 by 3 point हाँ, तो 2 से ज्यादा कि 2 से कम? ज्यादा होगा ना? हम कैसे बोल रहे हैं? ये भगवान। 6 आता ना। So you know that with this formula, VMP is the least one, then you have V average, then you have V RMS, small funde, okay, that we should know. Also the next significance is this value, okay? Look at the area under the curve. एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y क्या है? ये dn by dv, और dx क्या है? dx मतलब dv लिखेंगे, तो dv gets cancelled, I get integration of dn, okay? This is actually not dA, one second, there is a small, हाँ, तो you get dn, this is dA का वैल्यू, राइट? y dx की है, dA will be y dx, राइट? तो I get dn, तो टोटल एरिया चीज क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया के dA को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेसिकली वी आर इंटीग्रेटिंग dn, which will get as n, okay? What is n? n is total number of molecules in that container. So you should know that if I change the temperature of the gas, will the velocity change? Answer is yes, because temperature, right? तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? बट क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसा समझो, ठीक है, कि देखो आज की क्वेश्चन लाइक दिस, कि बोला कि देखो हमने कर्व को ऐसे बनाया, एक बार ऐसे बनाया, ठीक है, और एक बार ऐसे बनाया, ठीक है, फ्लैट ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। दिस इज ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2। इफ आई आस्क यू कि ये एरिया अगर A1 है और ये एरिया A2 है, तो किसका एरिया ज्यादा, किसका एरिया कम? सेम, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होगा टेम्परेचर का नहीं। तो समझ आता है A1 शुड बी इक्वल टू A2। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। समझ में आया क्या? ठीक है, एरिया तो चेंज नहीं हो सकता बॉस, बिकॉज एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा ना मॉलिक्यूल्स डबल हो जा रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि एरिया सेम रहेगा। समझ में आएगा? पॉइंट नंबर 2, कैन यू टेल मी कि विच टेम्परेचर इज मोर एंड विच टेम्परेचर इज लेस? टेम्परेचर T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? तुम ग्राफ देख के बता सकते हो क्या? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T2, T1, T2, तो ही ऑप्शन है, T1 या T2, तुम तो बोल दोगे। हाँ, देख समझो कैसे मालूम पड़ेगा। देखो क्या करना है अपने को, देख अपने को ये समझना है कि यहाँ पे देख, ये कुछ तो वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वेलोसिटी, राइट, है ना?
ठीक है, तो वी नो दैट कि दिस वेलोसिटी इज लेसर एंड दिस वेलोसिटी इज मोर, कि ग्राफ का ये कर्व का आगे पचका है ना ये, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो आई कैन से दैट v2 इज मोर देन, है ना, v1, दैट विच नो, है ना, v2 इज मोर देन v1 और वेलोसिटी टेंपरेचर आर प्रोपोर्शनल, राइट, hence t2 is more than t1. Is it making sense? This is correct. I hope you are able to understand what I am discussing right now. ये information सब समझ में आना चाहिए अपने को. That is Maxwell distribution curve for you. Okay. समझ में आ गया? If I change the temperature, velocities will change. Okay. But the area under the curve remains constant because that will represent the total number of molecules in that container. This understanding is very important. Any questions, anyone? See and understand. See, इट्स मैथमेटिकल, मतलब जैसे ये कर्व है, ओके, और मुझे अगर तो और फ्लैट करना है तो ये ऐसे आना चाहिए ना, ऐसा. आई हैव टू मेक श्योर दैट एरिया रिमेन्स द सेम, इजंट इट, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो अगर ऐसे पीक है और एरिया सेम रखना है तो ऐसे नहीं कर सकते ना यार, दिस इज ऐसे तो नहीं बना सकते, इन दैट केस एरिया विल चेंज, तो आई हैव टू मेक इट फ्लैटर. समझ में आ रहा है क्या? आई मेक इट फ्लैटर, ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल शिफ्ट टू दिस, थोड़ा आगे, तो पीक विल शिफ्ट ना, यहाँ पे पीक है तो पीक थोड़ा आगे आना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? समझा ना? ठीक है, ऐसे ही थोड़ा दब जाएगा वो, ठीक है, ऐसे तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, समझा ना? आगे शिफ्ट हो मतलब क्या, अगर ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्वियसली कम है, एक्स एक्सिस में ये 20 है, दिस रिप्रेजेंट 30. समझ में आ रहा है क्या? तो दैट मींस कि अगर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मींस व्हाट, टेंपरेचर इज इंक्रीजिंग. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं पीक से, आई होप पीक रिप्रेजेंट्स यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके, इट इज नॉट द टेम्परेचर और वेलोसिटी, वेलोसिटी इज दिस टर्म. इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा थोड़ा सा? ठीक है, पॉज करो, फटाफट लिखो.